Hello, dear students. I welcome you all to this on the occasion of Doctor's Day. We have with us Dr. Pramin Maheshwari, Senior Joint Replacement Surgeon from Bareilly. So, sir, very good evening to you, and I wish you very happy Doctor's Day. Sir, how are you? I'm perfectly fine. Thank you very much for your good wishes. So, myself, Amit Agarwal, I welcome you here from Akash family. So, sir, first of all, I would like to ask you what inspired you to become a doctor? Medicine is such a noble profession where you have so many things to explore and to serve the society. So this is something where we earn money also, we earn our livings. Along with that living, we also have so many blessings from the people, from the society. So this is a profession which attracts people. That's why all students who just pass their 12th, most of them, they want to be a doctor. Sir, as yes, rightly said by you that being a doctor is very noble profession, and we have seen it recently during the COVID times, like as when we were sitting safely at our homes, you guys were fighting like a warriors for us. So, like it is, I can understand that how hard work you have done, and like one more thing, like it was your ambition from your childhood to become a doctor, or it was like when you get into 10th or 11th, then you realize that you want to become a doctor? From since my childhood, I wanted to become a doctor because I've always seen doctors working very nicely for the betterment of the society, for the betterment of the patients. So when I was probably in fifth or sixth class, and Okay, at sir. that time also around 30 years back, so students had a good choice to choose between medicine and engineering. So I opted for medicine just because I wanted to serve my society with a passion and to just make them healthier. ओके सर. सर, हाउ डिड यू प्लान, लाइक बच्चों को जानने की इच्छा रहती है कि आपने अपनी जर्नी कैसे प्लान की थी, लाइक मेडिकल प्रिपरेशन आपने कैसे किया था, एंड हाउ यू गॉट सक्सेस? कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी? It was a smooth sail for us. Sometimes it is not a very smooth sail for everyone, for all students. But when I cleared my 12th, that time it was multiple colleges, they were having their entrance exams. So we have to get through all different entrance exams of different organization of institutes. So after my 12th, as I told you in my school days only, I was thinking that I'll become a doctor. So I prepared hard in my 11th and 12th only. And when I Sir. passed my 12th class, we had to go through this PMT exam, pre-medical test exam, and I got through that exam. I was selected in All India exam, medical entrance exam also, and similarly I was selected in this AFMC exam AFMC. also, and AMU also. So these were the three. I could crack 3 entrance examinations, and then I took my admission into Jawaharlal Nehru Medical College, AMU, Aligarh. ओके सर. सर, आजकल जो बच्चे तैयारी करते हैं, इट्स लाइक हम बच्चों को मैं बताता हूँ, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट एग्जाम, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम. सो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ देयर प्रिपरेशन फॉर 2 years दे हैव, लाइक वेदर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग, उनको कुछ मेंटल स्ट्रेस रहता है. सो हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस, लाइक मेंटल हेल्थ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम किसी भी स्टूडेंट के लिए उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस पर ध्यान देना चाहिए. आजकल कॉम्पिटिटिव टाइम है, आप देखते ही हैं इंजीनियरिंग में, नीट में कितने लाखों लाखों बच्चे बैठते हैं, और उसमें से सिलेक्शन का जो रेशो है, जो सीट्स है, वो बहुत कम है. तो आपके पास एक बहुत कम चॉइस होती है कि जिसमें से कुछ बच्चे ही सेलेक्ट हो पाएंगे. तो ये ध्यान रखने की बात है. लेकिन अगर जो बच्चे बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस पे बैठेंगे या उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, तो शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो इट इज रिक्वायर्ड कि आप एक अच्छे से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, रेगुलर पढ़ाई करें, अपने फोकस पढ़ाई करें. बहुत से बच्चे होते हैं जो सिलेबस होता है उसके अदर देन द सिलेबस वो पढ़ रहे होते हैं या अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं. उसके साथ साथ ऐसा भी ना हो कि आपसे कुछ चीजें छूट जाएं. तो लोगों को अपने लक्ष्य के प्रति बहुत समर्पित रहना होगा. बच्चों को ये समझना होगा कि हमारे पास सिर्फ यही समय है जब हम सिलेक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत अच्छा एग्जाम वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, जबकि वो साल भर अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होते हैं.
तो उनको मेंटल स्ट्रेस के लिए अपने को थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती हैं, अपनी फैमिली के साथ उनके बहुत अच्छे इंटरेक्शंस हों, अपने टीचिंग फैकल्टीज के साथ उनके बहुत सारे अच्छे इंटरेक्शंस हों, उनको खूब इंक्विजिटिव होना चाहिए, उनको खूब पूछना चाहिए, उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो अपने दोस्तों से, अपने सहयोगियों के साथ डिस्कस करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो ये ध्यान रखें अपने लिए कि जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से समझें, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। यस सर, राइटली सेड सर। बेसिकली स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हैं, सर ने बोला है कि हमें अपनी फैमिली से बेसिकली हमें फ्रेंडली होना चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ जो कुछ मन में है वो अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से शेयर करें। सर, what are the like different qualities like a student might have to become a doctor, like some special qualities, a certain set of qualities that you would like to suggest for the students? There's nothing very special to become a doctor. You know, medicine is something where you have to work 24/7. Emergencies are always there. Anybody can fall sick anytime. So you should be prepared. किसी को ये समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं कोई 10 to 5 जॉब करके मेडिसिन में अपने आप को सक्सेसफुल कर लूंगा। तो जो भी लोग अपने आप को मेडिसिन के लिए तैयार करना चाहते हैं, दे वांट टू बिकम अ डॉक्टर, दे शुड नो कि हम किसी भी समय काम करने के लिए तैयार रहें। हम एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है जब कोई पेशेंट हार्ट अटैक का आ जाता है, या कोई एक्सीडेंटल इमरजेंसी होती है, या किसी को अचानक से कोई बेहोश हो गया होता है, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक प्रॉपर डिसीजन लेने की पावर्स, उस पेशेंट को ठीक करने की, उस एक अनकॉन्शियस व्यक्ति को किस तरह से कॉन्शियस किया जा सकता है, वो डिसीजंस लेने की क्षमता भी व्यक्ति में होनी चाहिए। तो उसके लिए किसी को भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। यही सारी चीजें हैं जो किसी भी डॉक्टर को बाकी दूसरे लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है। सर, एक क्वेश्चन और, जो आपने मेडिकल प्रिपरेशन किया था, दैट वाज मोर डिफिकल्ट और द मेडिकल प्रैक्टिस? हाँ, दोनों के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एक जब कोई स्टूडेंट होता है तो उस स्टूडेंट के ऊपर परफॉर्मेंस प्रेशर क्लिनिकल या फिर दुनिया के सामने उसको नहीं दिखाना होता है, उसको अपनी किताबों के साथ बहुत न्यायपूर्वक, बहुत जुडिशियसली उसको उसके साथ अपना पढ़ाई करनी होती है। और वो अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो वो अच्छे मार्क्स भी लेके आ सकते हैं। जस्ट नाउ वी सो देयर वर सो मेनी गुड स्टूडेंट्स who got selected with a very high rank of 720 out of 720. So इसको अचीव किया जा सकता है। वो बच्चे भी आप ही के बीच में से होते हैं, और वो सारे बच्चे जो लगभग 650 से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं, आई थिंक वो सभी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। और जब वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और पढ़ाई के साथ साथ आप अच्छे अगर निकलेंगे तो उसके बाद जब आप प्रैक्टिस में होंगे, जब आप पेशेंट्स के बीच उनकी सेवा करने जाएंगे, तब अगर आपने पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छी की हुई होगी तो आप अपनी मेडिकल एजुकेशन भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद अपनी पीजी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद आप प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सर। सर, वन मोर क्वेश्चन, लाइक आजकल मैं देखता हूँ बच्चे बहुत जंक फूड की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, लाइक एनी सजेशन फॉर द डाइट प्लान्स और लाइक व्हाट काइंड ऑफ डाइट दे शुड टेक? डेफिनेटली हमारे खाने का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे स्वास्थ्य के लिए ही है। तो बच्चों को एक पौष्टिक खाना, एक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार की बहुत जरूरत होती है, जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, मिनरल्स भी हो। मैं सिंपल भाषा में बच्चों को यही बताऊंगा, जो एक टेक होम मैसेज भी होगा, कि आप अपनी डाइट में 5 प्रकार के कलर्स का यूज कीजिए। अगर मैं अभी ये कहूँ कि इतना कार्बोहाइड्रेट खाइए, इतना प्रोटीन्स खाइए, तो शायद उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा। ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं वो अलग प्रकार के हर चीजों के, जो हमारे भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उसमें गेहूं की रोटी खाइए, चने की रोटी खाइए, थोड़े से चावल भी खाइए, लाल रंग के फल खाइए, टमाटर खाइए, ग्रीन रंग की वेजिटेबल्स खाइए, ऑरेंजेस होते हैं, दूध है, दही है, वो जो सफेद रंग का होता है। तो अगर हमारी डेली डाइट में डिफरेंट 5 कलर हैं, तो उसका मतलब है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, प्रोटीन्स भी जा रहे हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं। धूप में बैठना बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चे धूप में बैठेंगे तो उससे भी उनके शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है, जो वो भी पूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्लोज डोर स्टडीज कर रहे होते हैं। आजकल बच्चे हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, तो उनको धूप भी नहीं मिल रही होती है। तो अगर वो 1 घंटे के लिए कुछ एक्सरसाइज करने का प्लान कर सकते हैं, वो रनिंग कर सकते हैं, या वो धूप में निकलेंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
फिजिकल फिटनेस पढ़ाई के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है, और इसमें एक्सरसाइज का और फूड का सबसे बड़ा रोल होता है। ओके सर। सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक आजकल जो बच्चे पढ़ाई का प्रेशर ले लेते हैं, लाइक देयर इज अ पीयर प्रेशर और पेरेंट्स की साइड से प्रेशर होता है, सो व्हाट इज लाइक, आप क्या कहेंगे, प्रेशर इज गुड और लाइक और बिग प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेटर? नॉट एट ऑल। आप प्रेशर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा होगा तो शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वन हैज टू बी वेरी रिलैक्स्ड अबाउट थिंग्स व्हेनेवर ही वांट्स टू परफॉर्म। तो ये ध्यान रखने की बात है। और आकाश जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ इतनी अच्छी फैकल्टीज हो, आज बाई चांस डॉक्टर्स डे जिसपे आप मुझे विश कर रहे हैं, आई मस्ट विश ऑल यू फैकल्टी ऑल्सो कि आप हर साल इतने सारे डॉक्टर्स को भी बनाते हैं। तो डॉक्टर्स डे आप लोगों के लिए भी स्पेशल है कि हर साल हम इतने सारे शहर, इस देश को इतने सारे डॉक्टर्स देते हैं, और वो भी गुड रैंक्स के डॉक्टर्स देते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है हमेशा कि जब कभी भी कहीं भी कोई भी सिचुएशन आती है जहां हमको एक डिसीजंस लेने होते हैं, जहां डॉक्टरी के बारे में हमें जानकारी होती है या मरीजों को देखना होता है, तो वो तभी आएगा जब आप एकाग्रचित होंगे, जब आप फोकस्ड होंगे और आपको अपनी चीजों के बारे में पता होगा। तो कोई भी डॉक्टर्स हो, उनको ये ध्यान रखना चाहिए, या जो स्टूडेंट्स वो प्रिपेयर कर रहे हो, अपने नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि मेरे लिए रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। अंडर स्ट्रेस या अंडर प्रेशर फ्रॉम व्हाट डू यू कॉल अ पीयर प्रेशर, उसमें बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर सकते। यस सर, मैं भी अपनी क्लास में बोलता हूँ लाइक स्माइलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ द डे, सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। दैट्स वेरी ट्रू। एंड अलोंग विद दैट, बच्चों को कहीं ना कहीं अपने कोचिंग्स की स्टडीज के साथ साथ अपने पेरेंट्स के साथ एक उनका जुड़ाव रहे। साथ साथ वो कुछ मोटिवेशनल बातों को हमेशा अपने पास रखें। कुछ लिटरेचर अगर किसी को पढ़ने की थोड़ा शौक है तो वो उसको भी पढ़े। और साथ साथ दुनिया में क्या हो रहा है हर वक्त, इस वक्त दुनिया एक इंटरनेट की एज है जिसमें कहीं भी कुछ हो रहा होता है, विद इन 5 सेकेंड्स यू कैन नो अबाउट द थिंग्स। तो बच्चों को अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास की चीजों के बारे में जो घटनाएं, उनकी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। सर लाइक माई सेल्फ बीइंग एन इंजीनियर एंड आपने इंटरनेट की बात की है, तो जस्ट मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि लाइक आजकल एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो आप हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू हेल्प द फ्यूचर डॉक्टर्स? एनी कमेंट्स? Definitely. See, medicine is an ever changing field. 5 साल में मेडिसिन में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। जिस टेक्निक से, जिन मेडिसिन से हम आज इलाज कर रहे होते हैं, समझिए 5 वर्ष पहले वो मेडिसिन नहीं होती थी, या फिर उनमें काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। आज जिस तरह जो चीजें, आंखों की सर्जरी होती है, मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूंगा, जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, या पेशेंट्स को जिनको दिखाई नहीं देता उनको कैटरेक्ट सर्जरीज करानी होती है, हर 5-6 साल में जो मटेरियल होता है उन लेंसेज का वो चेंज हो चुका होता है। स्टिचलेट सर्जरीज आ चुकी होती हैं, लेजर सर्जरीज आ चुकी हैं, और अभी तो रोबोटिक सर्जरीज आ चुकी हैं, जिसमें कि सर्जन कहीं होता है और पेशेंट कहीं होता है, और अमेरिका में बैठ के एशिया में ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। टेलीपैथी इज समथिंग विच इज अलोंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट विच इज वी आर प्रैक्टिसिंग टुडे। तो एआई डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और लेकिन फिर भी ये भी कहने की बात है कि मेडिसिन एक ऐसी चीज है जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस और उनका अनुभव और उनका एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। किसी भी पेशेंट को आप टेक्निकल हेल्प से अपनी नॉलेज तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको क्या दवाई देनी है, उसका क्या सर्जरी करनी है, उसके लिए क्या बेस्ट सूटेबल ऑप्शन रहेगा, ये आपको खुद करना होता है। इसमें टेक्निक्स आपकी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से आप करा नहीं सकते उसको। Sir, lastly, I would like to ask you, like, if you want to give some success mantra or some message to our students that will be like beneficial for them. सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलूंगा कि नंबर एक तो आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने आकाश को चुना है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बच्चों को प्रिपरेशंस कराते हैं, लेकिन समहाउ आकाश इस देश का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। अब ये ड्यूटी इंस्टीट्यूट के साथ साथ पेरेंट्स के साथ साथ स्टूडेंट्स की भी होती है कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे। तो जब कभी भी आप पढ़ें, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतिदिन अपनी कोचिंग की स्टडीज के साथ साथ हर बच्चे को उसकी प्रैक्टिस के लिए रोज अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। जो कुछ भी वहाँ समझाया जाए, जो भी वहाँ नोट्स हों, जो भी वहाँ मॉडल पेपर्स या मॉड्यूल्स जो हों, उनको वो सॉल्व करें और लिखने की आदत डालें। जो कुछ पढ़ाया जा रहा है
उस टॉपिक को वो अपनी कॉपी पे लिखें, 1 बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, 4 बार लिखें। जब कभी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में उसके इंप्रेशंस या उसके कुछ इनपुट्स पहुंचते हैं, और जब हम उसी चीज को 10 बार पढ़ते हैं तो कुछ इमेजेस बन जाती है। लेकिन अगर उतनी मेहनत हम उसी चीज को 4 बार लिख लेंगे तो 10 बार पढ़ने के बराबर 4 बार लिखना होता है। इमेजेस, पिक्चर्स वो ज्यादा काउंट करती हैं ब्रेन में, तो बच्चों को लिखने की आदत बहुत होनी चाहिए। आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जमाना है, तो बच्चे सोचते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस कर लेंगे तो हम शायद कुछ सीख जाएंगे या रट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। डेफिनेशंस हैं, फॉर्मूलेज हैं, इक्वेशंस हैं, असर्शंस हैं, जो कुछ भी हैं वो बच्चों को बहुत लिख लिख के देखना चाहिए उस टॉपिक को। जब कभी रिवाइज करेंगे तो वो सारी इमेजेस उनके मन में आ जाएंगी। एवरीबडी somebody said this that a single picture is worth 1,000 words. So they must understand this logic about this line. Definitely आपके inputs हमारे students को बहुत help करेंगे, and I would like to thank you from behalf of our students and Akash family for sparing time on this auspicious day. Thank you very much, sir. Thank you so much, and all the best for all your students and faculty.